In today's session, we are going to cover data consolidation along with data validation. Okay. So first you need to understand that what is data consolidation and why there is a need of it. So basically, we use the consolidation function to summarize and report the result from separate sheets in a Excel workbook. Suppose there are multiple sheets in your workbook and they all have some data which you want to summarize at a different particular sheet, and then you want to present the report, okay, present the result. So you can do that using the consolidated or consolidate function. Okay, the sheet can be in same workbook, okay, or it can be in other workbook also. So I say that if there are multiple sheets in the similar workbook, then too you can do the consolidation. Or if the sheets are different workbooks, then too, if you want to consolidate the data between them, you can do that. So whenever you consolidate data, you assemble data so that you can more easily update and aggregate as necessary. And it is not only about using the sum and aggregate function, but there are variety of mathematical functions which are provided to you. Okay, like here, the Excel sheet, what we have in front of us is having a menu item, okay, along with their sales quantity, okay, for 3 different months, that is February, March, and April. Okay. Similarly, we have for second table, then for third table. Let's say I say that ki ye jo hai for 2020, this is for 2021, this is for 2023, 22. Okay, ये आपकी सीट्स हैं. 3 डिफरेंट सीट्स में आपके पास क्या है? You have this same menu items and the same months entries. Okay, that is February, March, and April, and the data in that is different. Let's say ये आपका data है यहाँ पे, तो values यहाँ पे कुछ और होंगी. Okay, here we have some different value, here we have some different value, and here we have some different value. और इनको हमको क्या करना है? इन तीनों ही सीट्स को कंसोलिडेट करना है, मतलब एक जगह पे एक सीट में तीनों सीट्स के जो सेल्स है उसको कंबाइन कर देना है. ठीक है. सो आई से दैट आई वांट टू रिप्रेजेंट देम इन दिस फॉर्मेट कि ये जो पहला वाला 20 है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ February 20, then here it is 30 and there here again it is 20, तो टोटल 70. तो इस तरह से उसको मुझे जो है कंसोलिडेट करना है. So that consolidation I can do in Excel. Okay, but how to perform that consolidation option? There are different ways of it that we are going to see today in our session. So to consolidate data in your Excel sheet, okay, you can do it using 2 different ways. First thing, either you can make use of 3D sum or you can make use of consolidate function available in the data tab. Okay, the moment I click on data tab, so here on the data tab, you have an option called consolidate. Okay, this is what the place where I kept my mouse currently. This is the option of consolidation. Just give me a minute. So
What all two options we have available with us for the consolidation of the seats? First thing is to use 3D sum function. Okay, there is no specific function for that, but we call it as 3D function, 3D sum function. Okay, that I will explore you first, and then the second mechanism or the second method to perform consolidation is to go to this data menu, and there in data tab you will have this particular option. Okay, this is the control to which you can insert the consolidate function inside your data sheet. Okay, so these are the two things we can do. Consolidations can also be done in two different ways, static and dynamic with sheet linking. That also we will explore. But first, let me tell you about the 3D sum. Okay, so what is 3D sum? 3D sum is a technique to perform some function on the cells of multiple sheets, on the cells of multiple sheets. Like I say that I have three sheets, namely 2020, 21, and 22. Okay, these are the three sheets, and all these three sheets have data for the same purpose of some menu item and their sales in month of February, March and April. अब उसे एट द एंड मुझे क्या करना है, मुझे जो है तीनों ही मंथ की जो सेल्स है, ओके, उसको जो है मुझे टोटल करना है. और आई कैन से मैं चलो लेता हूं ब्रांच 1, दैट इज बेटर ना, ब्रांच 1. Let's name it as branch 1, branch 2, branch. So I can say there are three branches where the same menu items are there, और वहां का जो है सेल्स का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, एंड उसे आपको क्या करना है, तीनों ही सीट्स को कंसोलिडेट करना है. फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कितना सेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाना है. उसे उसके लिए हमको क्या करना है, 3D सम का यूज करना है. बट 3D सम के लिए कंडीशन क्या है, 3D सम में कंडीशन ये होती है कि सपोज जैसे आपको ब्रांच 1 सीट का सेल वैल्यू क्या है, सेल रेफरेंस क्या है, B2. ओके, दिस इज अ सेल एड्रेस B2. देन ब्रांच 2 का सेम सेल B2 एंड ब्रांच 3 का सेम सेल B3 B2. आपको क्या करना है, तीनों ऐड करना है. ओके, so that operation is what, 3D sum. But the condition is that if you want to consolidate the data between multiple sheets together, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो डेटा है तीनों ही सीट्स पे उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, पोजीशन डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. जैसे क्या है, ब्रांच 1 में आपका जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो B2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, एट D8. तो सिमिलरली ब्रांच 2 सीट में भी आपका डेटा स्टार्ट होना चाहिए B2 से, एंड होना चाहिए कहां पे, D8 के अंदर. सिमिलरली ब्रांच 3 में भी वो स्टार्ट होगा B2 से एंड एंड होना चाहिए D8 में, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके, सो विद दैट आपको करना क्या है, सिंपली जहां पे भी आपको एडिशन करना है आप सिंपली ले आइए अपना सेल टू दैट पर्टिकुलर, means you take your control to that particular cell, that is B2, in a separate cell called, in a separate sheet called sum. Okay, or you can name it, let's say we are doing 3D sum. Okay, तो आप यहाँ पे लाइए इसको, और सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे प्रेस इक्वल टू साइन एंड देन टाइप सम. 3D नाम का कोई सम नहीं है, बट सम फंक्शन इज देयर. अब सम फंक्शन में हमको करना क्या है, just see, just the moment you are writing sum, you are opening the bracket, यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक होगा. एट द सेम टाइम आपको करना क्या है, आपको जाना है फर्स्ट सीट में, आपको वो फर्स्ट सेल वैल्यू सेलेक्ट करनी है,
दैट इज, देखो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हियर इन द फॉर्मूला बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा दे रहा है ब्रांच 1 एक्सक्लेमेशन साइन। ब्रांच 1 एक्सक्लेमेशन का मतलब कि अब मैं जो है ब्रांच 1 से जो है कोई सेल सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। सो व्हाट सेल आई एम सेलेक्टिंग हियर इज B2। द मोमेंट आई सी B2, इमीडिएटली इसने डाला ब्रांच 1 टेबल, ये जो है एक टेबल है तो टेबल का नेम, ओके, एंड आई एम सेलेक्टिंग Feb, okay. Similarly you can go for branch 2, okay, you can do the same thing and then you can come to here this particular place, okay. आप चाहो तो कॉमा कॉमा करके एक एक इंडिविजुअल सेलेक्ट करो, जैसे ब्रांच 1 में आ गया, ओके, देन सेलेक्ट द नेक्स्ट वन, ओके, or what you do, just simply click on this branch 1, you come over here and you press shift, क्योंकि आपको फर्स्ट सीट से थर्ड सीट के बीच में कंसोलिडेट करना है, एंड जस्ट प्रेस व्हाट, शिफ्ट बटन, एंड देन क्लिक ऑन दिस ब्रांच 3 सीट नेम। आप इस ब्रांच 3 सीट नेम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है, देखिए ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 3 तक इसने क्या किया है, कंसोलिडेट कर दिया है। गॉट इट? एंड द मोमेंट यू आर कमिंग देयर, प्रेस एंटर, सॉरी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, let's try again, sum, okay, you are coming to this particular seat, okay, select this, shift, okay, now it will work। अब यहाँ पे देखो 3D sum B2, okay, here it comes। What I did, simply you select this from branch 1 and then press on shift, click on branch 3 and just press enter and it will do the work for you। यहाँ पे देखो 3D sum में ऑटोमेटिकली क्या आ गया, और simply what you can do, you can first type the first seat name followed by colon followed by last seat name exclamation sign followed by the cell value B2। इसका मतलब ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 3 तक जहां जहां पे भी B2 सेल है, B2 सेल की वैल्यूज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है टू परफॉर्म द सम ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। गॉट इट? ये हो गया, इसको हम 3D सम बोलते हैं। अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो बड़ी बात ये है कि अब ये जब मैंने एक कर लिया ना, व्हाट इफ यू वांट टू कंसोलिडेट द एंटायर सीट्स, तो आपको हर एक सेल के लिए जाके अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको ड्रैग करो टू ब्रिंग इट टू D8, okay, in the similar way you just bring it to D8 and what it will do, it will do the work for, okay, and आप इसको लाइए D3 तक। Got it? So if you want you can verify the result। Let's say D3 पे क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। So let us check the value, 25 here, 25 here and 25 in the last seat, तो total कितना हो गया, 75। So this is how you can see this is your value which is working। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से आप अपने हेडर्स को कॉपी कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये भी ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, ये आ सकता है, बट उसके लिए हमको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अभी जो मैंने किया है वो मैंने डेटा कंसोलिडेशन किया है, बट विद द हेल्प ऑफ 3D सम। मैंने कंसोलिडेशन फंक्शन का यूज नहीं किया है,
Now if you want, you can do the formatting. 3D सम का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी सेल पोजीशंस तीनों ही सीट्स में डिफरेंट हो गई तो फिर ये जो है आपका सम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा. लेट्स से अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं, यहां से कट करके कंट्रोल एक्स एंड आई विल प्रिंट इट समवेयर एल्स, यहां पे कर दिया. ठीक है, सेल पोजीशन चेंज हो गई, B2 पे अब कुछ नहीं है. ठीक है, जस्ट सी व्हाट विल हैपन. ये सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3D सब में फर्क पड़ गया. क्या हो गया, पहले 20 पहले 70 था, 50 हो गया. वाई? बिकॉज यहां से मैंने वैल्यू डिलीट किया, उसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया, सो 20 वहां से रिमूव हो गया. सिमिलरली अगर आप इसको रिलोकेट कर दो कहीं पे, ओके, जस्ट सी हियर, गॉट इट. you will see the change in other fields also. You will start noticing it. अब अगर थर्ड वाले को भी मैं उठाऊं यहां से, ओके, and what I do, I just paste it over here. Just see what will happen. Okay, so this is what the impact. This is what the impact. यहाँ से यहाँ पे वैल्यू ले रहा है C5 से. देखो C5 ऑनवर्ड्स कहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ पे C5 ऑनवर्ड्स. तो यहाँ की वैल्यूज को वो ले रहा है, पर्टिकुलर वैल्यूज जो इसमें आ रही है. Got it? This is what the drawback. अब अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि अच्छा 3D समय ये ड्रॉबैक है कि सेल की पोजीशनिंग सेम होनी चाहिए, देन ओनली इट विल प्रोवाइड यू प्रॉपर रिजल्ट. सो दैट इज करेक्ट थिंग. बट what if I have seats but the position of the values are at different place? So can't I consolidate my values? So the answer is yes, you can definitely do that. But for that 3D sum function will not work. Instead of that, we have to make use of the consolidate control available in our Excel worksheet. Okay, तो ये है आपका 3D sum. आई होप ये समझ में आया होगा. हेलो, नाउ ये तो हमने 3D सम देख लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ कंसोलिडेशन ऑप्शन. ठीक है, तो कंसोलिडेशन में मैं अभी यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ. आई क्लियर इट, आई क्लियर द लिंक शीट ऑल्सो. सब क्लियर कर देते हैं. okay. ठीक है, अब ये देखो हमारी जो ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 है, इनमें जो सेल पोजीशन से वैल्यूज की सब मैंने अलग कर दिया है. अब हम परफॉर्म करेंगे कंसोलिडेशन एंड लेट अस सी कंसोलिडेशन हमारा जो है प्रॉपर्ली काम करता है या नहीं काम करता है. ओके, लेट्स से you go to data and select this particular consolidate option. The moment you click on consolidate, it will open this dialog box. अब ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली कुछ रेफरेंसेस लिए हैं इसने. ये रेफरेंसेस को मुझे क्या करना है, पहले डिलीट कर देना है. फर्स्ट रिमूव द रेफरेंसेस. ओके, सारी चीजें क्लियर कर लो. अब देखो यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या हैं. सो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस व्हाट यू कैन अप्लाई. Like you can apply sum, count, average, mean, max, product, count number, standard deviation, where, var, all these options are available. ठीक है, तो not only to perform sum but also to average. आप average भी निकाल सकते हो, count भी निकाल सकते हो. Whatever options you want, you can do that. ठीक है, तो let's say अभी हम sum करते हैं. To select sum function, then give a reference over here. आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड कराने हैं. ठीक है, रेफरेंसेस कहाँ के, जिस डेटा आइटम को आपको कंसोलिडेट करना है, ठीक है, या जिस टेबल को आपको कंसोलिडेट करना है, उसकी आपको रेंज देनी है. रेंज आप दो तरीके से दे सकते हो. आप यहाँ पे क्या करो, यू क्लिक ऑन ब्राउज. ठीक है, और ये आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा. यहाँ से आप कोई सीट भी ले सकते हो. तो याद होगा जैसे मैंने बोला, आप एक्सटर्नल सीट्स को भी कंसोलिडेट कर सकते हो. और यू कैन सिंपली go to this branch. Simply you can go to this branch sheet and आप यहाँ पे क्या करिए, जैसे ही आप इसको आप पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन्यू आइटम टू 25. ठीक है,
और अब आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपली यू क्लिक ऑन ऐड। द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऐड, तो यहाँ पे जो रेफरेंस आया है वो रेफरेंस यहाँ ऑल रेफरेंसेस में ऐड हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आ गया। ओके, सिमिलरली अब आपको क्या करना है, ब्रांच 2 का रेफरेंस देना है। ओके, ब्रांच 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो इसको, इस रेफरेंस को क्लियर करो एंड सेलेक्ट दिस। ओके, एंड देन क्लिक ऑन ऐड। सो सेकंड रेफरेंस ऐड हो गया। नाउ कम टू ब्रांच 3। ब्रांच 3 में आपको यहां से रेफरेंस देना है। यू हैव टू गिव दिस रेफरेंस ओवर हियर। ओके, and then click on add. The moment you click on add, what is happening here is you can see आपके तीनों ही टेबल के तीनों रेफरेंसेस जो अलग अलग पोजीशन पे हैं वो ऐड हो गए हैं। आपने फंक्शन ले लिया है सम, तो वो क्या करेगा, उनके ऊपर सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब इसके अलावा ये आपको ये बोलता है यूज लेबल्स इन, आपको लेबल्स क्या क्या यूज करना है। आपको टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम यूज करना है क्या, यस आई हैव टू यूज। अगर आप इसको नहीं चूज करते हो तो ये क्या करता है, इट विल कॉपी द आंसर। जैसे मैं सिंपली विदाउट टॉप रो विदाउट लेफ्ट कॉलम करूं एंड क्लिक ऑन ओके, व्हाट इट डज, ये देखो रो कॉलम को नहीं लिया एंड फ्रॉम हियर इट हैज स्टार्टेड डिस्प्लेइंग मी द वैल्यू। बात समझ में आई? ये है कंसोलिडेशन। देखो अब सेल पोजीशन कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल कंसोलिडेट योर वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, इन कंसोलिडेट मैंने टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम चूज नहीं किया था। इफ द मोमेंट आई हैव चूजन इट एंड क्लिक्ड ऑन ओके, सॉरी, कंसोलिडेट, click on here, okay, and click on OK. The moment I do that, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्लेस पे वो जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर रहा है, फिल कर दे रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ये पूरा का पूरा आपका जो है इस तरह से एक जगह उठा करके दे देगा एंड इट विल डू द सम ऑपरेशन ऑन इट। ठीक है, 3D फंक्शन में एक बात थी कि 3D फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते तो वैल्यू यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करती। जैसे यहाँ पे ब्रांच 2 में जो है, यहाँ पे सॉरी ब्रांच 1 में यहाँ पे 20 है, उस 20 को अगर मैं 10 कर दूं which is still reflecting in 3D sum, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर उस पर्टिकुलर रेफरेंस में कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका इंपैक्ट 3D सम पे पड़ेगा, वैल्यू चेंज होगी। बट इफ द सेम थिंग आई एम कमिंग इन कंसोलिडेशन तो फर्क नहीं पड़ता। देखो वहां पे मैंने 20 को 10 कर दिया तो यहाँ पे 60 होना चाहिए था ना, हियर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे 60 होना चाहिए था, बट 60 नहीं हुआ। देखो लेट अस चेक, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, दैट इज 40, और यहाँ पे अगेन 20 है, तो 60 होना चाहिए, बट कंसोलिडेशन में 70 दिखा रहा है। इसका रीजन ये है कि जो मैंने कंसोलिडेशन किया उसमें मैंने तीनों ही सीट्स को लिंक नहीं किया है। आई हैवंट लिंक द सीट्स, मैंने सिर्फ उनकी जो स्टैटिक वैल्यू थी उस समय की उनको कॉपी करके ऐड कर दिया, बट सीट्स की लिंकिंग नहीं हुई है। तो सीट्स की लिंकिंग नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन, वो कंटिन्यूअसली उन सीट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को ट्रैक और अपडेट नहीं कर पाएगा। गॉट इट? नाउ टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू द सेम थिंग। अब देखो वही चीज हम करते हैं यहाँ पे, एंड we will create a separate one more consolidation over here, और यहाँ पे सम लेंगे। ठीक है, we will add some references over here। ठीक है, ये फर्स्ट रेफरेंस ले लो, add, सेकंड रेफरेंस ले लो, add, then थर्ड रेफरेंस ले लो, add। okay, and now include this top row, left column, and यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, ये हमने इसके पहले वाले में नहीं किया था। द मोमेंट यू क्लिक ऑन क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, तो जो सोर्स डेटा है जो तीनों ही टेबल्स हैं उससे इनको लिंक कर देगा, तो वहां पे जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड द वैल्यू विल आल्सो चेंज। क्लिक ऑन ओके, जस्ट सी व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। यहाँ पे इसको डिलीट करो, इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, ये आपका डेटा है, यहाँ पे देखो 60 रिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ,
लेट्स से मैं यहाँ पे अब इसको 30 कर देता हूँ, लेट अस सी। तो कंसोलिडेशन में तो नहीं चेंज हो रहा है, वो एज इट इज 70 है, बट जब मैं इस पे आ रहा हूँ सीट 6 पे तो ये 80 हो जाता है। सो द वैल्यू इज चेंजिंग, यहाँ पे 30, अगेन यहाँ पे 30, 60 एंड यहाँ पे 20, दैट इज 80। लेट्स से यहाँ पे मैं 67 को चेंज करता हूँ, आई विल मेक द चेंज ओवर हियर, आई विल ऐड 20 ओवर हियर, मैं यहाँ पे 20 ऐड, सॉरी बस 67, आई विल मेक इट, आई विल ऐड 3, तो मैं इसको 70 कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट अस सी कि यहाँ पे फॉर कैर्निटास इन मार्च वहां पे कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। ओके, कैर्निटास हियर नाउ इट हैज, ये एज इट इज है, तो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे 201 है। बट जब मैं सीट 1 में आता हूँ, देखो यहाँ पे 201 है, उसी के लिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 204 दे रहा है, मतलब जो 3 मैंने इंक्रीज किया था वो इंक्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। So this is what the consolidation option provides you. This is how you can consolidate your seats. Okay, you can consolidate multiple seats into single one. And ये तो था इसके लिए for the what I say, for the sum function, for the aggregation. Similarly, you can use for average. Sorry, you can use it for average. ठीक है, click on OK. देखो वैल्यू चेंज हुआ, एवरेज निकाला। सिमिलरली ये क्या कर रहा है, उसको समराइज कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन भी दे रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट। जब आप इसको समराइज करते हैं, ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस भी देता है कि ये कैसे कर रहे हो आप, यहाँ पे उसका एवरेज निकाल दे रहा है। ओके, इन दैट वे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, what else do you available, what else do you have, just to clear it, let's say। ठीक है, इसको क्लियर करो यहाँ से। Now come to this particular sheet। Okay, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स डू इट अगेन, गो टू द कंसोलिडेट। अब यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, द सीट्स रेफरेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, यही रेफरेंसेस यूज करना है, क्लिक ऑन ओके। द मोमेंट आई डू दैट, यहाँ पे देखो आपको एवरेज निकाल करके देगा। ओके, फॉर ऑल, गॉट इट। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, दैट you can get the count also, you can do it for count or max। मुझे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम सेल्स क्या है, so click on OK, it will give the max value in all the corresponding cells। So similarly you can use different function and you can do the consolidation in your Excel sheet। I hope it is clear to all of you, और ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। Now we are going to use data validation। Okay, so data validation is a process of validating the inputs given by the user। Okay, so here you try to validate each and every input given by the user, whether the value is given as per the specific format or as per the specification or not। Look, sometime it happens that you have to create some Excel sheets or Google forms, and then at that time you want to get the responses from different users or different user background, or you need to collect some feedbacks।
But the problem is that when you give the flexibility to the respondent, so they can enter the value or the response in the way they want, and whatever they are willing to, they are able to do that. But sometimes it happens that the data what we collect is not in a proper format, is not in a proper types. Okay. So at that particular time, you wonder that if we could have some kind of technique so that I will restrict the users to give their responses. Like sometime you, like we people only, we get the data, we forward the seats to the classroom and users are entering their roll number in different way. Like some are using only numbers, some are using the complete TDIT 005 in that way. Okay. Some might write male, some write M, some write female, some write F. Okay. Some may write their date in a specific format. Some may write some invalid email IDs. So how we can do the email validations? Okay. Then sometime I ask you to provide the class and division. So class अगर मैं option देता हूँ आपको, तो class में भी आप क्या करते हो? Someone write BCom, then someone write first year BCom, someone write FY BCom, someone write F.Y.BCom. BCom. In that way, different values we are getting. Okay. So that is not appropriate. It is appropriate for the person who is entering the value. Okay, because he is finding inconvenient, but not for the person who is going to do some analysis on it. Because आप data में थोड़ा भी changes करते हैं, okay, so it treats it as a different data sets. It treats it as a different value, and when you want to do it manually, then it is okay. But if you are using some tools for the analysis purpose, अगर आप data के लिए tools का use कर रहे हैं, तो वो tools क्या होगा, अगर इसमें upper case, lower case का भी difference आएगा, तो it will treat it as a different value. So that it will impact the analysis. Okay. So that is why it is always important to get the value, get the feedback, and to get the feedback in a correct format. Okay. As appropriate. And second thing, don't allow the user to enter some invalid input. If you know that there could be some invalid input which may come from the user, so you try to keep some checks on it. You try to restrict the user to enter the value in a particular range, or you don't allow them to take the liberty of entering anything scrap. Okay, that will save you lots of time in formatting as well as in analysis. So that is why the data validations are very useful and very important concepts in Microsoft Excel. Okay, so I will show you each and every option, how you can make use of it to make your Excel sheet interactive, as well as you will restrict your user to give the same input only. And not only that, अगर user कुछ गलत input डाल रहा है, तो you will be able to pop up a message also. आपके Excel sheet में एक warning या फिर एक alert message भी आएगा, which can then tell the user whether the format is right or wrong. Okay, so आप उसको और customize कर सकते हो. That is why we use data validations. Okay, so now one by one we will do it. Like let's say यहाँ पे मैंने एक कॉलम में एक टाइप का I have written one a particular word. Okay, तो इसका पर्पस ये है कि हम ये different टाइप्स के वैलिडेशन चेक करने वाले हैं. लाइक फॉर होल नंबर, फॉर डेसिमल नंबर. ओके, होल नंबर डाल दिया है तो यहाँ पे सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए. वी कैन नॉट अलाउ डेसिमल नंबर्स ओवर हियर. देन टेक्स्ट लेंथ, डेट, टाइम, लिस्ट, ईमेल एक्सेट्रा. अच्छा, तो अब अगर जैसे हमको वैलिडेशन करना है तो वैलिडेशन ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पे है? फॉर दैट यू हैव टू कम टू दिस पर्टिकुलर डेटा टैब. ओके, एंड डेटा में आपको कहाँ आना है? You have to come over here. Okay, दिख रहा है ये डेटा वैलिडेशन. ओके, ये आपका डेटा वैलिडेशन है. बेटा स्टैम्प का यूज करता हूँ, ये वाला, ये आपका डेटा वैलिडेशन है. ओके,
So यहाँ पे आप आइए and you use this particular tool. The moment you click on it, okay, it will open a dialog box for you. Okay, और यहाँ पे और भी options like data validation, circle invalid data, and clear validation circles. So you click on data validation. The moment you do that, you get this particular dialog box with 3 tabs, that is setting, क्या validation setting apply करना है, input message क्या देना है, error alert क्या देना है. Okay, तो यहाँ पे settings में first step, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, you have to provide the validation criteria. कि क्या validation criteria होगा. अच्छा, वैलिडेशन में आपको अलाउ क्या कर रहा है, कौन कौन से ऑप्शंस आपको अलाउ कर रहा है. फर्स्ट थिंग फॉर एनी वैल्यू, सेकंड थिंग फॉर होल नंबर, देन डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम वैलिडेटर, जिसका यूज आप जिप कोड, पिन कोड, आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर, देन योर ईमेल आईडीज, इन सबको वेरीफाई करने के लिए आप कस्टम का यूज कर सकते हैं. ओके, वेयर यू कैन मेक यूज ऑफ सम फॉर्मूला. ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे. When you click on any value, what does it mean? You are free to enter any value. वहां पे कोई restriction नहीं है. Let's do it for whole number. What if I select whole number? तो whole number में अब आपको बता रहा है, अब आप allow कर रहे हैं. You are allowing whole numbers to be entered inside a cell. यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको you just see it, ये ignore blank दिया ना. अगर आपने इग्नोर ब्लैंक को चेक रखा है तो क्या होगा, ब्लैंक वैल्यूज के ऊपर ये वैलिडेशन अप्लाई नहीं करते हैं. अगर ब्लैंक है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, इग्नोर नहीं करेगा. ओके, दैट इज वन थिंग. सो व्हेन आई एम सेलेक्टिंग होल नंबर टू अलाउ इन अ पर्टिकुलर सेल, तो मुझे बोलेगा अगर आपको होल नंबर चाहिए तो आप अपनी रेंज बताओ कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ योर डेटा. आपको नंबर जो है कहां से कहां तक इंसर्ट करना है. तो नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एनीथिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 0 1 टू एनीथिंग. तो लेट्स से हमने यहाँ पे एक रेंज दे दी है 100. ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सेल, एंड आई क्लिक ऑन ओके. द मोमेंट आई डू दैट, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, इफ आई एंटर 1 इट इज ओके, इफ आई एंटर 0 इट इज नॉट ओके. व्हाई? ये इमीडिएटली एरर देगा, क्योंकि मैंने मिनिमम रेंज क्या रखा था 1 और मैक्सिमम क्या रखा था 10, तो उसके बीच की कोई भी वैल्यू रहेगी चलेगा. सो यहाँ पे एरर दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच विद द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल. नाउ यू क्लिक ऑन रीट्राई, इट विल अलाउ यू टू री-एंटर. सो लेट्स से आई टाइप 8 and I press enter, it succeeded. I press 10, it succeeded. But what if I press 11? It did not allow you. If I click on cancel, what will happen? वो जो previous value थी उसके लेकर के जाकर के set कर देगा. What if I enter -10 या -11 या -10? Press enter, it will not allow, क्योंकि मैंने range दे दिया है minimum 1, maximum 10, no negative value. Okay? Then again I click on cancel, फिर से previous value पे ला करके छोड़ देगा. Suppose if I want to take your inputs, अगर मुझे आपके रोल नंबर एज एन इनपुट लेने हैं, ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसको क्लियर कर दो, क्लियर वैलिडेशन. ओके, यहाँ पे आप इसको इग्नोर करो, क्लिक ऑन ओके. अब आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया वैलिडेशन. अच्छा, लेट्स से आई वांट टू अलाउ यू ऑल टू इंसर्ट योर डिटेल्स, एंड मैं चाहता हूं कि आप जो रोल नंबर इंसर्ट करोगे वो 1 to 120 के बीच में ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, सो क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ओके, मैंने इकट्ठे पूरा का पूरा रेंज ले लिया, तो इसी रेंज के ऊपर वो अप्लाई करेगा होल नंबर बिटवीन 1 and 100 या 120.
ठीक है, क्लिक ऑन ओके। अब यहां से लेके वहां तक के सेल्स में मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा 100 एंड 120 से, सो इट विल अलाउ मी। ओके, 346 डाला, एरर दे दिया, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है वो 120 है। आई कैन नॉट इवन एंटर 120। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज है, व्हाट इफ आई डू नॉट एंटर एनीथिंग? ये अलाउ कर रहा है ना। चलो अभी इसके लिए भी हम थोड़ा कुछ करते हैं, एंड वी विल कम मोर हियर, क्लिक ऑन यस, एंड ठीक है, यहाँ जो इग्नोर ब्लैंक है ना, इसको अनचेक करके ओके कर दो। जस्ट सी व्हाट विल हैपन द मोमेंट आई क्लिक टू एंटर समथिंग, एंड फिर मैं उसमें कुछ ना क्लिक करके बाहर क्लिक करूंगा। इफ आई click somewhere else without entering any value in it, immediately it will give me an error। और ये तब तक अलाउ नहीं करेगा जब तक मैं वहां पे कोई वैल्यू ना एंटर कर लूं। गॉट इट? सो दैट इज व्हाट इट डज। ओके, so let's say I press 7, it will allow me। So this is how this number validation option work। okay, similarly let's say यहाँ पे मैं अभी कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है, आई कैन पुट दिस ऑल्सो, ये ले लेगा, आई कैन पुट दिस ऑल्सो। ओके, सो ऑल काइंड ऑफ वैल्यूज आई कैन अलाउ, बट व्हाट इफ आई वांट दैट कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। सो अगेन क्लिक ऑन दिस वैलिडेशन बटन एंड सेलेक्ट व्हाट, डेसिमल। ओके, नाउ अंडर डेसिमल, अच्छा यहाँ पे देखो, जब आप होल नंबर लेते हो और डेटा लेते हो तो यहाँ पे बिटवीन दिया है, बिटवीन के अलावा आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। दैट इज नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको यहीं पे दिखा दूं, यहाँ वाले पे ही, ठीक है, एंड लेट अस डू वन थिंग। यहाँ पे मैं होल नंबर लिया, बिटवीन के बदले नॉट बिटवीन लूं, कि 1 एंड 20 के अलावा आपको कोई और डेटा देना है तो दो। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 120 दूंगा, ठीक है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 एंड 20 के बीच की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं 121 दूंगा, इट विल इजीली एक्सेप्ट। व्हाट इफ आई अगेन पुट 4? इट विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि 1 एंड 120 के बीच की कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं। सो व्हाट इफ आई पुट 0? इट विल एक्सेप्ट। गॉट इट? सो दिस इज हाउ this particular function works. Now simply I will click on decimal, okay, and you again go to this validation option, select decimal। अब डेसिमल में आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या रखना है। सो लेट अस से आई विल से कि 0.00 से आपको मैक्सिमम क्या अलाउ करना है, आपको मैक्सिमम अलाउ करना है 100.00 ओनली। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू इंटर करोगे यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट में होगी। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट इट, नॉट एन इशू। इफ आई क्लिक ऑन 12.00, it will also accept it। ओके, तो डेसिमल वैल्यूज अब आपको एक्सेप्ट कर रहा है। बट वही चीज अगर मैं होल नंबर पे करता कि 7.0 इंसर्ट करो, इट वुड नॉट हैव अलाउड मी। अब यहाँ पे अलाउ कर रहा है। आप बोलोगे सर फिर डेसिमल आ क्यों नहीं रहा है? बिकॉज मैं हर जगह पे 00 डाल रहा हूँ। नाउ व्हाट इफ आई एंटर 13.98? तो ये अलाउ करेगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पे 13.98 करूँ तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। गॉट इट? So this is what the use of decimal। Simply when you are putting the decimal values, तो वहां पे आप जो है डेटा, मतलब जो ये कंडीशन है, आप अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हो, वेदर टू चूज बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, not equal to, less than, greater than। okay, all these options also you can make use of। okay, then comes the text length। text length field क्या होती है? it will allow you to give a range of length, कि ये रेंज आप अगर कोई भी इनपुट देना चाहो तो इस लेंथ से कम की वैल्यू या फिर इनपुट नहीं दे सकते। ओके, सो यू कम टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड आप यहाँ पे सिलेक्ट करो टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ आपको बोल रहा है, तो लेट्स से बिटवीन। ओके, बिटवीन छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को अपना नाम एंटर करना है, इफ आई वांट टू गेट द नेम, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि किसी का भी नाम
दो लेटर से लेस देन ना हो, ठीक है। सो आप कहोगे नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, तो मैं बोलूंगा कि ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी का भी नाम जो होगा एटलीस्ट 2 लेटर्स का तो होना चाहिए, तो 2 लेटर का होने के लिए उसको हैव टू स्पेसिफाई कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओके। तो मिनिमम 2 डाल देते हैं, तो मिनिमम 2 कैरेक्टर्स अलाउ करने चाहिए, ओके। तो लेंथ, लेट्स से यू आर पुटिंग m, ओके। एरर दिया, 1 letter cannot be allowed, but the moment you write ma, it will allow you. The value doesn't match value. So let us see if I type 1, okay. A number cannot be taken. Okay. So आपने टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे दिया था मिनिमम 2 होना चाहिए. So if you are entering anything, okay, which is lesser than or greater than, okay, this particular strength, okay, ग्रेटर देन दे रहे हैं ना, तो ग्रेटर देन में जब मैं 2 डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए. सो क्लिक ऑन ओके. सो इफ आई विल टाइप 1 or 2 कैरेक्टर्स, it will not accept it, okay, but the moment I am typing the third one, okay, it will accept it. Got it? So similarly if you are putting this, या फिर मैं कहूंगा कि जो नेम का रेंज होना चाहिए, it should be between, let's say ये टेक्स्ट लेंथ है और यहाँ पे बिटवीन लेते हैं, बिटवीन 2 to 20, मतलब 20 से ज्यादा, 20 लेटर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए. सो क्लिक ऑन ओके. सो अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा इट विल गिव एन एरर. अगर मैं 2 डालता हूँ, ओके, लाइक रो, ओके, एंड अब यहाँ पे मैं कितना डालूंगा. सो लेट्स से it allowed me, but it can go up to 20 characters, not more than that. 20 अल्फाबेट से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए. Okay, so this is how you can make use of this particular text length field. इसमें और भी सारे आपके पास options हैं that you can apply over here. Okay, like text length आप select करके उसमें less than, greater than, equal to, whatever range you want to specify you can give. Okay, then the next is what, date.
सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डेट फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, एंड आई विल अप्लाई इन डेट, आई विल अप्लाई द डेट वैलिडेशन। द मोमेंट यू से, तो आपको डेट डालनी है। ओके, तो लेट्स से जब आपको डेट ऑफ बर्थ लेना होता है किसी को, इन योर स्कूल और इन योर कॉलेज, wherever you want to get this particular kind of input, तो आप यहाँ पे एक स्टार डेट और एक एंड डेट दे सकते हो। ठीक है, लाइक मेनी टाइम यू सी दैट यू गो एंड फिल सम फॉर्म्स, तो वहां पे आपको डेट फील्ड में देखो एक रेंज देता है, उसके बाद की चीजें आप नहीं भर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई यहाँ पे सपोज किसी इवेंट की एंट्रीज करनी है, ठीक है, तो इवेंट एंट्रीज मुझे बताना है कि आपको जो है 2021 से लेकर के 22 के बीच में जो एक्टिविटीज की गई है, उन्हीं के डेट्स को वहां पे एंटर करना है। तो आई कैन गिव अ रेंज ओवर हियर, लेट से मैं बोलता हूँ कि 1 मार्च टू 31 मार्च। ओके, सो यू कैन गिव फर्स्ट 03 2022, ओके, और एंड डेट 31/03/2022। now click on OK। the moment you do that, आपने एक रेंज दे दिया है। अब अगर आप यहाँ पे 01 02 2022 डालना ट्राई करोगे, इट विल गिव एन एरर, क्योंकि वो वैल्यू जो है स्टार डेट के पहले की है। सिमिलरली इफ आई ट्राई टू एंटर 1 April, it will not allow, but what value it will allow instead of that, अगर मैं यहीं पे इसको 3 ले लूं, ये अलाउ कर देगा। यहाँ पे मैं ले लूं 20 March, it will allow, but what if I do some changes in that, और मैं यहाँ पे इसको 23 कर दूं, it will not allow again। why? because वो रेंज को क्रॉस कर जा रहा है। okay, so similarly you can validate the dates। okay, अगर आपको टाइम वैलिडेट करना हो, यू कैन डू द सेम थिंग, यू कम ओवर इन द वैलिडेशन ऑप्शन, सेलेक्ट टाइम एज वेल। टाइम में भी अगर आप चाहो तो बिटवीन ले सकते हो, लेट से स्टार्ट टाइम आपका 7 AM हो गया, ओके, एंड एंड टाइम हो गया आपका 13, and then click on OK। So if you are putting anything beyond that, let's say I'm entering 6:58, okay, it should give an error to you। Similarly, if I give 7:15, it will allow, but what if I enter 14? Okay, it will not take that। let's say यहाँ पे क्या दिया है वैल्यू, रेंज। अच्छा, मैंने एक ही फील्ड के ऊपर किया था, दैट इज वेल। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 14 फिर से लूँ, इट विल नॉट अलाउ। वाई? क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है 13 है, तो आई कैन पुट 13.00, या फिर आई कैन पुट एनीथिंग बियॉन्ड दैट, बिटवीन दैट, तो आई कैन पुट let's say 12.59, that is also allowed। so this is how you can validate the time also। ठीक है, validate in the sense, अब आप यहाँ पे restrictions दो, and then I will allow the users to enter the value, तो वो उसी रेंज में उसको एंटर करेंगे। then let us create a list। अब मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स क्रिएट कर देता हूँ, let's say BCom, okay, BAF, BIM, BFM, FinTech, BIA, BMS, BEM, BBI, BLSCM, then comes BAMMC, BAFTNMP, followed by BSc IT, followed by
BSc DS, ठीक है। ये कुछ हम लेकर के चलते हैं। एंड अच्छा हाँ, यहाँ पे BIA भी है। ओके, ये मैंने क्या किया, एक लिस्ट ले लिया। आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर लिस्ट। आप बोलोगे लिस्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट। ये मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है। मैं चाहता हूं कि यही लिस्ट में से कोई भी यूजर इनपुट को सेलेक्ट करे, एंड आई डोंट वांट देम टू एंटर एनीथिंग फ्रॉम देयर ओन। सो व्हाट आई डू, यहाँ पे मुझे लिस्ट अलाउ करनी है। आई सेलेक्ट दिस, आई क्लिक ऑन वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा लिस्ट। तो आप लिस्ट करते हो ना, तो ये बताता है, आपको पूछता है कि लिस्ट का सोर्स क्या है, ठीक है, उसकी रेंज क्या है। तो आई विल से कि लेट से दिस इज द रेंज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में जो भी वैल्यूज हैं उनको उस पर्टिकुलर लिस्ट में ले लेगा। एंड द मोमेंट आई डू दैट, यहाँ पे देखो यू विल बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन ऑप्शन हो रही है। ओके, ये देखो, ये आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। अब आप इस ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करते हैं, सो व्हाट हैपेंस, इट विल शो यू all the components in that particular list. Got it? अब इस लिस्ट में आपको कोई भी चीज अगर सेलेक्ट करनी है तो आप वहां पे सेलेक्ट करिए, एंड दैट विल बी एंटर्ड। एंड सपोज इसी तरह से बहुत से बच्चे, सबको एंट्री करना है। और जैसे कि अगर तुम्हारी क्लास में से मुझे सबका डेटा लेना हो, करेक्ट डेटा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, आई विल शेयर अ सीट विद यू पीपल, जहां पे आप जो है इस तरह से वैल्यूज इंसर्ट कर पाओगे। एंड मैं वहां पे वैलिडेशन डाल दूं, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन। तो रोल नंबर, नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल आईडीज, ये सारी चीजें जो है आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में लोगे। ओके, यू विल नॉट वायोलेट दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, यू विल नॉट बी एबल टू वायोलेट दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे सर हर जगह बैच कॉमन ये हो गया, नो इशू, यू कैन अपडेट। जो भी बच्चा जाएगा वहां पे ही कैन अपडेट द इंटरव्यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो ऐसी चीज हुई है कि क्या हम यहाँ पे ब्लैंक अलाउ कर सकते हैं, लेट अस चेक इन द वैलिडेशन। यस, वी हैव डन। ओके, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू ना सेलेक्ट करो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे दी है ना। व्हाट इफ यू वांट ना, व्हाट इफ यू वांट टू कीप एनीथिंग ब्लैंक, तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए। एंड द मोमेंट यू डू दैट, ठीक है, so, अगर आप कोई चीज ब्लैंक रखते भी हो वहां पे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट येट वी हैवंट प्रोवाइडेड एनी ब्लैंक ऑप्शन। सो आप क्या करो, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर दो, ब्लैंक। ओके, सम टाइम इट हैपेंस कि हमारे पास जो है वी डोंट हैव ऑल द स्पेसिफाइड रेंज। ओके, सो यू कैन गो टू दिस डेटा वैलिडेशन, एंड अगेन यू कम ओवर हियर, एंड आप यहाँ पे आ जाइए लिस्ट में, यू गिव योर सोर्स, और वहां पे ब्लैंक डाल दीजिए, सो दैट इन केस अगर यूजर की चॉइस इसमें अवेलेबल नहीं है तो ही कैन सेलेक्ट, ही और सी कैन सेलेक्ट दी ब्लैंक ऑप्शन। तो इसका मतलब जो भी चॉइसेस प्रोवाइडेड थी उसमें से उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस। ओके, देन आफ्टर दैट हम ईमेल्स को भी वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, अब ईमेल वैलिडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से आप यहाँ पे आ जाइए, यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, देखिए ईमेल किस में आता है, इनमें से किसी में भी नहीं आता है। सो यू सिंपली क्लिक ऑन कस्टम। द मोमेंट यू डू गो टू कस्टम, यहाँ पे कस्टम में आपको बोलता है कि यू एंटर अ फॉर्मूला। ओके, तो अब आप एक फॉर्मूला एंटर कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। द फॉर्मूला इज इक्वल टू इज नंबर, ओके, मैच, ये एक्सप्रेशन आपको डालना पड़ेगा।
ओके, मैच क्या क्या करना है हमको, डबल कोट्स स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्टार, स्टार मतलब एनी वैल्यू, एनी कैरेक्टर, एंड देन एट द रेट, एंड देन एट द रेट के बाद कोई भी कैरेक्टर, ओके, देन डॉट, देन क्वेश्चन मार्क, देन अगेन स्टार एंड क्लोज द कोटेशन। ओके, अब आपको यहाँ पे कौन से सेल को वैलिडेट करना है, ओके, तो इट इज सेल नंबर G4, so you can type G4, okay, and then comma 0. Now click on OK. So क्लोज कर लो, फिर बाहर भी एक है उसको क्लोज कर लो, देन क्लिक ऑन OK। एरर क्या दे रहा है, हाँ यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा G4 के पहले, क्योंकि वो एक सबस्ट्रिंग क्लोज हुई है। क्लिक ऑन ओके, एंड अब देखो यहाँ पे ये वैलिडेशन आ गया है। तो लेट से मैं एक बोगस ईमेल डालता हूँ कि ओके, लेट मी चेक विद द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, उसके फॉन्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ वो व्हाइट था मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल टाइप अ ईमेल आईडी रैंडम, रैंडम ईमेल आईडी नहीं, रैंडम वैल्यू डालता हूँ। इट विल गिव मी एन एरर कि आपका जो इनपुट है एक क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। सो लेट अस सी जो ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, लेट्स से आई एम एंटरिंग manish@kessc.edu.in, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली। या फिर इसके बदले में डालूं abc@xyz.com, ठीक है, फिर से यहाँ पे एरर दे दिया, बिकॉज द रीजन इज दैट क्या होना चाहिए, वो abc@xyz.com, अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये क्यों एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज द रीजन इज दैट हमारी जो भी ईमेल आईडीज होती है उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे उसमें दो चीज होनी चाहिए, एक तो ये @ कैरेक्टर और ये डॉट। @ एंड डॉट के आगे, बीच में और पीछे, मतलब बिफोर @, आफ्टर @, बिफोर डॉट एंड आफ्टर आफ्टर डॉट, वहां पे हमारे पास कुछ भी कैरेक्टर्स होने चाहिए। प्लस सेकेंड थिंग आपको ये चेक करनी होती है कि जो ईमेल आईडी यूज होना, जो स्टार्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, ठीक है, ये दो चीजें हैं। प्लस उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, लाइक हाइफन एंड ऑल, आप अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से अगर मैं डालूं ABC और यहाँ पे डाल दूं कोई $, एंड देन फिर मैं चाहूँ FYFG, एंड देन आई विल सेलेक्ट @ एंड देन आई विल से gmail.com, तो क्या वैलिड है, यहाँ पे वैलिड ले लिया, मे बी इट इज अ प्रॉब्लम विद द स्ट्रिंग। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, बट या दैट डिपेंड्स फ्रॉम डोमेन टू डोमेन, ओके, डिफरेंट डोमेन कैन भी अलाउ यू दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे मैं चाहूँ स्पेसेस डालना, इफ आई वांट टू पुट सम स्पेसेस, ओके, वो अलाउड नहीं होना चाहिए एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट सम ऑफ द कैचेस इन योर एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन में थोड़े कैच है जो वहां पे अलाउ कर दे रहे हैं इस टाइप की वैल्यू, बट
ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ले रहा है. सो इन दिस फॉर्मेट यू कैन टेक द इनपुट. ओके. Similarly, you can validate contact numbers also. Okay. तो मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर रेफरेंस. तो उसमें तो या तो आप होल नंबर में जाओ और एक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दे दो. दैट इज वन ऑफ द थिंग. ठीक है. और यू हैव टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दैट. So for any 10 digit number, okay, आपके पास एक ये होना चाहिए. An expression needs to be there. Okay. So let's say I am giving you that particular expression, जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो and you can utilize as per your purpose. Okay. ये मैं आपको शेयर कर दूंगा on your the mobile phone या mobile number. Okay. And let me come to the data field, validate option, go to custom and put a formula like this. Basically ये क्या करेगा? It will only check कि जो particular cell है जिसे आपको validate करना है. ठीक है. एंड वैलिडेशन में मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ? G8. ओके. सो पुट G8 ओवर हियर. ठीक है. G8. सॉरी. G8 फॉलोड बाय दिस. ओके. तो ये क्या चेक करेगा? खाली ये देखेगा कि जो इनपुट में दे रहा हूं वो 10 डिजिट का होना चाहिए. ओके. देन क्लिक ऑन ओके. एंड नाउ यू जस्ट सी इफ आई पुट एनीथिंग like this, it will give an error. तो ये exactly आप 10 digits के input दोगे, then only it will allow. ठीक है. एक तो ये हो गया. इसी तरह से आप डिफरेंट एक्सप्रेशन चेक कर सकते हो और यू कैन एंटर डिफरेंट एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर वैलिडेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन. ठीक है. तो ये एक आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ द इनपुट्स, हाउ यू कैन डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट वैलिडेशन ऑप्शन में और क्या क्या चीजें होती है? लेट्स से जो हमारा करंट वाला ऑप्शन है यहाँ वाला. ठीक है. यू कैन कम टू दैट. इसमें आपने ये वैलिडेशन डाला था. नाउ इफ यू गो टू इनपुट मैसेज, तो यहाँ पे आप कोई भी इनपुट मैसेज डाल सकते हो. लेट्स सी, यू कैन से वार्निंग या फिर इन्फो. ओके. प्लीज एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर. ओके. क्लिक ऑन ओके. तो ये आपका इनपुट मैसेज हो गया. देन एरर में आपको क्या दिखाना है? एरर में आपको बता रहा है कि वार्निंग है, स्टॉप है या इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो आपको वार्निंग देनी है तो वार्निंग दो, स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दो. तो स्टॉप से क्या होगा कि वो आपको इनपुट देना स्टॉप कर देगा. फिर जब आप रीट्राई पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से अलाउ करेगा उसी पर्टिकुलर सेल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए. ठीक है. अदरवाइज आप कैंसिल कर दो तो प्रीवियस स्टेट पे ला देगा. फिर वार्निंग है, सिर्फ वार्निंग देकर के छोड़ देगा, तो स्टॉप नहीं करेगा. और इंफॉर्मेशन में क्या करेगा? तो खाली आपको इन्फॉर्म करेगा बट इट विल नॉट स्टॉप यू. ठीक है. सो लेटर से यहाँ पे मैं स्टॉप का एक बार यूज करता हूँ.
टाइटल डाल दो एरर एंड प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, क्लिक ऑन ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इन्फो में ये चीज दिख रही है क्योंकि मैंने मैसेज में डाला था प्लीज एंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर। बट यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ गलत डालता हूँ, ठीक है, इमीडिएटली व्हाट इट शुड डू, यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। अब मैं रिट्राई करूंगा तो वापस से मुझे वो क्या करेगा, एडिट करने के लिए बोलेगा, तब तक जब तक कि मैं उसको चेंज करके करेक्ट ना कर लूं। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे आ जाइए और अब आप वार्निंग वाले में आइए, तो लेट्स सी कि वार्निंग में क्या करता है। क्लिक ऑन ओके एंड यहाँ पे अगर मैं एडिशनल डालूंगा तो देखो यहाँ पे इट विल गिव मी वार्निंग प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। अब आपको पूछेगा कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको आगे लेकर के चला जाएगा, मतलब विदाउट एनी करेक्शन, गॉट इट। और अगर आप नो कर दोगे तो आपको वापस वहीं पे लाएगा, इट इज लाइक रीट्राई इफ यू क्लिक ऑन नो। तो नो करने का मतलब आपको वो उसके अंदर करेक्शंस करने हैं, देन इफ यू मेक द करेक्शन इट विल मूव अहेड, गॉट इट। तो ये वार्निंग है। एंड सिमिलरली जब आप सिर्फ इन्फो डालोगे तो ये खाली आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स से आई एम एडिंग वन मोर नंबर इनटू इट, नाउ प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, ये आपको इन्फो दे रहा है, क्लिक ऑन ओके, आगे बढ़ जाएगा। तो ये कोई एक्शन नहीं लेता, खाली आपको बता देता है कि मिस्टेक है, बट उसको करेक्ट कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लेता या फिर आपको लेकर के नहीं जाएगा। बल्कि जब आप वार्निंग का यूज करते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि आपको कंटिन्यू करना है आगे या नहीं करना है। कंटिन्यू करने के लिए यस करते हो तो इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट सेल, बट अगर आप नो करते हो तो वो आपको दोबारा उसी सेल में लाता है टू मेक द करेक्शन। एंड एरर क्या होगा, वो स्टॉप करेगा एंड या तो कैंसिल करो या तो रीट्राई करो। कैंसिल करोगे तो प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा और रिट्राई करोगे तो आपको एडिट करने के लिए अलाउ करेगा, got it? So this is how you can make use of your validation options, okay, for guiding the user to put proper inputs, not by only putting validations but by providing them informations, alert messages and error messages also. So this is how the validation control works here in Microsoft Excel. Okay, I'll stop it here.